But let's talk about two things जो मैडम ने बात की. And madam, even from Trivandrum, Dr. Mohan Shenoy is logged in with us. He's an endocrinologist and he's saying wonderful communication. He is able to understand now actually what thalassemia genetics is. Seema ji हमारे पास logged in है. Her son and her husband both have thalassemia minor. No issue. What you need to take care, that is what madam has said. We'll just repeat it. And Ashu Dhingra ji asked about fetal hemoglobin and A1-2. So let's do these things. जब हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, that is a protein which carries oxygen. अलग-अलग तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं. जब हम एक टेस्ट करते हैं, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. लिक्विड में हम ये हीमोग्लोबिन डाल देते हैं. क्रोमा मीन्स कलर और बिजली का करंट चलता है. जितना साइज होगा हीमोग्लोबिन का, अलग-अलग तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं, उतना ही ज्यादा ये हीमोग्लोबिन कम तैरता है उस ग्राफ पे. जितना कम साइज होगा उतना ऊंचा तैरेगा. तो मैडम, व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन? 98% ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट्स इज व्हाट वी से मींस. मैं तो अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पर्पस से बता सकती हूँ, हमेशा से यही बोलती हूँ 12.5 एंड अबव इज नॉर्मल एंड अपर लिमिट हम ज्यादातर 17.5 रखते हैं. सो 12.5 to 17.5 is a normal hemoglobin. So 12.5 and above is normal hemoglobin, and if your hemoglobin is below 7, that is called severe anemia by the World Health Organization. Correct. Yeah. अगर anemia है तो we have to find a reason for it. ज्यादातर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 दिया जाएगा, एंड अगर 4 या 6 हफ्ते के बाद हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, फिर रीजन ढूंढते हैं. कई लोग पहले भी ढूंढते हैं. डिपेंड्स अपॉन द सिविरिटी, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू रीच द हॉस्पिटल, व्हाट यू रीच्ड फॉर. देन वी डू एन electrophoresis. So in electrophoresis, what is the most in a normal person, what would be the most common hemoglobin type, madam? So the normal hemoglobin is hemoglobin A, and A2 would be very high in these thalassemics. And electrophoresis, I suppose Dr. Kalra, you can explain more because I am more of a transfusion medicine specialist. So if you could put some light more on it. Yeah. तो अलग-अलग साइज होते हैं, अलग-अलग मॉलिक्यूलर वेट होता है आशु इन अलग-अलग हीमोग्लोबिन्स का. तो थैलेसीमिया की पिक्चर अलग आएगी, बट देयर आर मेनी अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज. सो सिकल सेल एनीमिया के अलग होगी, एंड यू विल हैव अ हीमोग्लोबिन पंजाब, हीमोग्लोबिन ई. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ hemoglobins. So you can picture. Many times Dr. Mohan has raised this issue about diabetes. Many times this hemoglobinopathy is diagnosed during diabetes care, because in diabetes care we do a test called HbA1c, and you find that the HbA1c is going totally haywire. ये भी hemoglobin based है. So then we realize कि hemoglobinopathy हो सकती है patient को. Now once we have done this, we have to go back and see कि thalassemia कहाँ से आया. It has to come from a parent. हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, one set of chromosomes comes from the father, one comes from the mother. If both parents have got a thalassemia trait, that is called thalassemia minor, there will be 25% chance के बच्चे को thalassemia minor होगा, 50% chance के बच्चा normal होगा, 25% chance कि उसको thalassemia major होगा. That is a big disease. If, however, the one parent has got thalassemia minor, the other one is normal, then 75% chances are कि बच्चे normal होंगे, 25% chance है कि trait होगा. तो सीमा जी ने जो point raise किया, she is normal, her husband has thalassemia minor, so there is a 25% chance कि बेटा या बेटी thalassemia minor होगा. तो मैडम, अभी तो आपने describe किया ये सारा कुछ. Suppose somebody gets thalassemia major, तो आया तो parent से है, उस बच्चे की life कैसे चलती है? Diagnose हो गया, child has to go for transfusion. आप regularly transfuse करते हैं. What are the challenges? So अभी ये बच्चा जिसको थैलेसीमिया मेजर है, definitely it's a challenge. It is a challenge. मतलब life easy नहीं है, पर in the present scenario I'll say life 20 साल पहले जो थी उससे बहुत बेटर है. और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देख रही हूँ उन बच्चों की, अभी जो मेरे साथ रजिस्टर्ड वहां पर बच्चे थे वो 40-45 ईयर्स के हैं इस टाइम पे, एंड मेनी ऑफ देम have got married also. मतलब I really thought that I would bring the pictures of them here, पर वो मैं ढूंढ नहीं पाई पिक्चर. Otherwise I have 3-4 kids जिनको मैं जानती हूँ जो अभी 40 to 45 एज ग्रुप में हैं, और वो मेरे साथ रजिस्टर्ड थे years back in Red Cross. Okay, now how life is.
सो सबसे पहले 2 तरह का है। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराऊंगा अपने बच्चे का, दूसरे सोच रहे हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे। तो ये 2 तरह की आपको डील करना है। ये कैसे डील करना है? सबसे पहले आपने सोचा मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराऊंगा, यू हैव अ परफेक्टली मैच्ड डोनर। नेचुरली आपका बच्चे का सिबलिंग ही हो सकता है, वो परफेक्टली मैच, वो आपका बच्चे का सिबलिंग है, और आपने सोच लिया कि मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराऊंगा, एंड दैट इज बीइंग डन, बहुत अच्छे से हो रहा है इस मोमेंट पे, एंड दैट इज अ बिग सेवियर, है ना। एक तो ये हो गया ट्रीटमेंट, हाउ लाइफ इज, एक ये ट्रीटमेंट है। बट एवरीवन कांट अफोर्ड अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एवरीवन कांट गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। तो अब कैसे लाइफ होगी, दूसरी लाइफ कैसे होगी? तो द ट्रीटमेंट दैट वी स्टार्ट इज, सबसे पहला ट्रीटमेंट तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही स्टार्ट होता है, इजंट इट? सो सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट है। तो आपको यू हैव टू, आई मीन जैसे ब्लड बैंक्स में जाएंगे तो डेफिनेटली डोनेशंस का एक प्रॉब्लम होता है। बट देयर आर सो मेनी वेज नाउ डेज कि जैसे बच्चे को कोई अडॉप्ट कर लेता है ना, वो बच्चे को अडॉप्ट करता है इन द सेंस कि आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज फॉर दिस चाइल्ड, कि मैं डोनर लेके आऊंगा। तो मतलब जैसे 4 लोग हैं, 4 लोग एक एक करके हर महीने मीन्स आफ्टर 3 months गैप के बाद दे 4 या 5 वॉट एवर नंबर्स दे लाइन अप and they keep on giving the blood transfusion for, means they come and donate for that child. So blood transfusion इस moment पे क्यों अच्छा है? While I'll tell, सबसे पहली बात, अब now leukodepleted blood available है हमारे पास। पहले क्या था, एक होल ब्लड उठा के और बच्चे को चढ़ा दिया जाता था, isn't it? तब तो कंपोनेंट्स का भी इतना सुविधा नहीं था। कंपोनेंट्स के आने से भी बहुत अच्छा हुआ है कि हम होल ब्लड नहीं चला रहे। उस बच्चे को सिर्फ रेड सेल की जरूरत है, हीमोग्लोबिन बढ़ाना है हमें उसका, हमें कोई प्लाज्मा थोड़ी देना है उसको। प्लाज्मा को क्यों डाल रहे हैं हम उसके अंदर? प्लाज्मा इज अननेसेसरली उसका वॉल्यूम ओवरलोड भी कर रहा है उस बच्चे का, which is not required in this child, isn't it? So right now the components are available, leukodepleted blood available है। आपके बच्चे को एलो इम्यूनाइजेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम आपको एंटीबॉडी टेस्टेड ब्लड देंगे, है ना। तो वो हम all good centers have this, ये वाली सुविधा है उन लोगों के पास कि वो आपके बच्चे का टेस्ट करेंगे। कोई एंटीबॉडी अगर डेवलप हो गई है, हो जाती है डेवलप, मीन्स लॉन्ग टर्म के केसेस में होती है, तो वो एंटीबॉडी आइडेंटिफाई करेंगे, उसका एंटीजन नेगेटिव ब्लड ढूंढेंगे और वो देंगे आपको। मतलब हम जबरदस्ती ऐसा वाला ब्लड नहीं देते जाएंगे जिसमें एंटीबॉडीज हैं और आप उसको झेल भी नहीं पा रहे। इट इज नॉट डन नाउ डेज। दूसरा नैट टेस्टेड ब्लड होता है आजकल। सो न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग होती है आजकल। न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग में क्या होता है, वायरसेस जो हैं HIV, HBV, HCV, ये बच्चों को डेवलप हो जाता है और लॉन्ग टर्म में आप दिए जा रहे हैं। विंडो पीरियड्स होते हैं इन सारे वायरसेस के, इजंट इट? बट NAT has reduced the window periods. I won't say that the window periods have gone zero. I won't say that. But they have considerably been reduced. They have been reduced to such times like आप donor की अगर आप screening बहुत अच्छे से करेंगे, when you talk to your donor and means आप वहाँ पर भी उसको ऐसे, I mean you can pinpoint the high risk behavior. यू कैन मीन्स अगर हाई रिस्क बिहेवियर आपको लग रहा है तो आप मत लो, उसका डोनेशन मत लो। एंड दूसरा नैट टेस्टिंग से आप विंडो पीरियड्स रिड्यूस कर ही रहे। सो दैट आल्सो हैज प्लेड अ वेरी मेजर रोल फॉर दीज किड्स कि लाइफ हैज नॉट बीन बैड फॉर देम नाउ। पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही पता नहीं क्या क्या हो रहा था, अभी अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो दे रहे हैं। आयरन चिलेशन अभी भी जरूरत है, आयरन ओवरलोड अभी भी हो रहा है, बट देन आयरन चिलेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है इस टाइम पे। पहले तो पेरेंटली था सारा सब कुछ, IV सब कुछ करना है, बच्चे को जाके एडमिट ही होना है। दैट वाज पेनफुल एक्चुअली, आई हैव सीन दैट। वो बहुत पेनफुल होता है पेरेंट्स के लिए कि बार बार ट्रांसफ्यूजन के लिए तो खैर अभी भी जाना होता है, बट चिलेशन में अब क्या है, ओरल टैबलेट आ गई है। पहले तो नहीं होती थी, पहले तो आपको IV लगाना है बच्चों को, तो अभी नहीं है ये सब। सो द मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ has changed all over these years. वो gradual change आया है,
पर डेफिनेटली आया है। अगेन मैं कहूंगी कि थैलेसीमिया डज नॉट मीन एन एंड ऑफ लाइफ. इट, you have to look at your child now that yes, I have to bring him up, raise him up properly. क्योंकि मेरे को कभी कभी लगता है ये पेरेंट्स की भी तो गिल्ट होनी चाहिए कि आपने दिया उस बच्चे को. नॉट दैट आई एम ब्लेमिंग देम, बट दिया तो तुमने ही है यार. तुमने तो टेस्टिंग नहीं कराई ना अपनी, और बच्चे को एक मेजर डिजीज दे दी आपने. तो वो मेरे को, आई फील वेरी सैड एट टाइम्स व्हेन आई लुक कि इस मोमेंट पे थैलेसीमिया क्यों होना चाहिए. होना ही नहीं चाहिए. ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं हम लोगों के यहाँ पर दिल्ली में, तो एक थैलेसीमिया की टेस्टिंग वाले लोग बैठते हैं, थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के लोग बैठते हैं, टेस्टिंग करते हैं. पर हाउ मेनी ऑफ अस कम फॉरवर्ड फॉर दैट टेस्टिंग. हमारे तो एक नोशन है, नहीं मैं तो ठीक हूँ, आई एम ओके, आई हैव नथिंग विद मी. पर आप थैलेसीमिया अगर टेस्ट करवा लेंगे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप अपने बच्चे को देने से आप बच जाएंगे. बच्चे का जो देखा है, every one of you who's seen thalassaemic children's, definitely children जो ये वाले बच्चे मतलब ठीक है वो हैं, पर उनका नॉर्मल लाइफ तो नहीं हम दे पाते ना उनको. और आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं. सो पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगी, जितने लोग सुन रहे हैं अभी, कि प्लीज टेस्ट करवाइए. ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, ये तो इट इज सच अ प्रिवेंटेबल डिजीज कि ये आगे ट्रांसमिट ही नहीं होगी. आपको थैलेसीमिया माइनर है, आप माइनर से शादी क्यों कर रहे हैं भाई? आप एक नॉर्मल आदमी से शादी करिए ना, तो आपका बच्चा एटलीस्ट थैलेसीमिया मेजर नहीं होगा. एटलीस्ट वी कैन डू दैट. एंड हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनको बताइए इस बात को कि आप आगे का आपका जीवन अच्छा होना है. कितना पैसा थैलेसीमिया बच्चे को रेस करने में जाता है, वो बहुत लोगों के बस का भी नहीं होता है. फिर भी वो एक छोटा सा टेस्ट करा लीजिए, वो तो थोड़ा, और मोस्टली इट इज फ्री ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ द सेंटर्स, शायद फ्री है वो टेस्ट. तो मैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म से ये बोलूंगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी करवाएं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको आप बताएं कि ये कराना होता है ये टेस्ट.